ओके प्रोजीज बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इन दिस सेशन ऑफ डिस्कसिंग इन आवर मायावाद discussions मायावाद खंडन discussions based on the discussion between Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Prakashanand Saraswati in Banaras, trying to follow in the beautiful most eligible Vedanta purports along the line. And in our journey we have landed in a very unique position where starting with Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Prabhupada. We are today here discussing the books of the Vedanta, the seven untenables, seven arguments against Mayavad by Sripad Ramanujacharya, which was first mentioned by him in his Sri Bhashya, which is his commentary on Vedanta Sutra. And later on, his followers, majorly Sri Vedanta Deshika and Sri Sudarshan, who were two major acharyas in Sri Vaishnava Sampradaya line after Sripad Ramanujacharya. So they expounded upon those the Sattva-Vida Anupapatti. And even up to date, those seven arguments give Mayavadis a cold feet. So there is this book that I got printed, and it is dealing with the seven arguments. But this book is quite extensive in its nature because the book talks both argument and the counter argument. So it is like a, um, a non-partial study of the Saptavidhana Upapatti. So it talks about the arguments of Shripad Ramanuja and then the counter arguments, mostly Madhusudan Vachaspati, Mandan Mishra, Bhamti school, and Vivaran school. We'll go into that. So we'll start with our discussion on those seven untenables or seven arguments that Shripad Ramanujacharya gave, and let's see how far we go in that. Um, Before going into the discussion, actually, I want to give some context कि क्या चल रहा है यहाँ पर और कैसे सत्यविदा अनुपपत्ति पिक्चर में आई. So, Sri Vaishnava Sampradaya, there was an acharya by the name Yamunacharya who was preceding Sripada Ramanujacharya. And Yamunacharya wrote this book called Samvat Siddhi, जिसमें उन्होंने एक्चुअली जो ये मायावाद का सारा मायावाद मतलब अद्वैत वेदांत वर्सेस वैष्णव वेदांत का जो सारा डिस्कशन है, इस बुक का जो सारा डिस्कशन है और जो सेवन आर्गुमेंट जो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने दिए और जो एंडलेस डिबेट चल रही है बिटवीन वैष्णवास एंड अद्वैत वेदांत फॉलोअर्स, इस सब के सेंटर में है कंसेप्ट ऑफ अविद्या. क्योंकि सारे सारे डिस्कशन अविद्या के चारों तरफ हुए बिकॉज जो मोस्ट डिफिकल्ट आई वुड से नाइटमेयर टास्क है मायावादी के पास, वो है कि अविद्या को कैसे डिफाइन करना. आज हमारा मेजर डिस्कशन इसी पॉइंट के आसपास होगा कि अविद्या है क्या, अविद्या का लोकस क्या है, क्या अविद्या का लोकस जीवा है, क्या अविद्या जीव में वास करती है या अविद्या ब्रह्म में वास करती है. किस प्रकार से हम विल सी हाउ मायावादीज आर डिवाइडेड ओवर इट. वन स्कूल ऑफ मायावाद says that Jiva is locus of Avidya, while the other school says Brahman is the locus of Avidya. And in both the cases, the Vaishnava Acharyas, majorly Sripad Ramanuja, Sri Vedanta Deshika, and Sri Sudarshan, all three from Sri Vaishnava Sampradaya, they criticize Mayavadis uh, for for putting Jiva or Brahman as the locus of Avidya. तो ये जो जो सेंट्रल डिस्कशन है अद्वैत वेदांत का, वो सेंट्रल डिस्कशन अविद्या के चारों तरफ होगी, क्योंकि ब्रह्म और जीव के नेचर को लेकर बहुत मेजर डिसएग्रीमेंट्स नहीं है अद्वैत वेदांत और वैष्णव वेदांत. क्वेश्चन आता है कि अविद्या को आप कैसे डिफाइन. द वैष्णव वेदांत डिफाइंस विद्या एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम ब्रह्म, एज वन ऑफ द एनर्जीज ऑफ ब्रह्म. बहिरंगा शक्ति भगवान की जो माया शक्ति है, इट इज एनर्जी ऑफ ब्रह्म. इट इज नॉट मिथ्या. It is not completely independent on with completely independent from Brahman, and it is not completely one with Brahman. It is Shakti of Brahman. Whereas Advaita Vedanta explains the Vidya as entirely as an entirely different entity.
और यही अंडरस्टैंडिंग ऑफ अविद्या और उसके बाद फिर अविद्या के फर्दर इफेक्ट्स कि अगर अविद्या ऐसे आई है तो जीव का ब्रह्म से विच्छेद कैसे हुआ या सृष्टि जगत की सृष्टि कैसे हुई। तो बस ये अविद्या के डिफरेंट कंसेप्ट से सारी जो है दो राहें शुरू हो जाती हैं अद्वैत वेदांत दर्शन में। इसलिए जो मेजर जो सेंटर ऑफ डिस्कशन है वो सेंटर ऑफ डिस्कशन हमेशा है हाउ इज अविद्या डिफाइंड। सो इसलिए यामुनाचार्य रोट हिज बुक Samvit Siddhi, means he was the first Vishishtadvaita in any Sri Sampradaya Acharya who criticized Avidya. And after that came Sripad Ramanujacharya who gave Sri Bhashya his commentary on Vedanta Sutra और ब्रह्म सूत्र। इसमें ही क्रिटिसाइज अविद्या और उसी ब्रह्म सूत्र में हमें ये सारे आर्गुमेंट्स मिलते हैं। उसके बाद जस्ट आफ्टर रामानुजाचार्य जो नेक्स्ट आचार्य थे ही वाज वेदांत दीक्षिता। He wrote his book Shatadushani. इसमें he criticized the Mayavadi conception of avidya. And then came Sudarshan, next Acharya in Sri Vaishnava Sampradaya line, and he wrote book Sutra Prakashika. और शतदूषणी और सूत्र प्रकाशिका दोनों ही कमेंट्रीज हैं श्री भाष्य और रामानुजाचार्य और दोनों में ही उन्होंने इन दोनों आचार्यों ने वेदांत देशिका और सुदर्शन ने अद्वैत कंसेप्शन ऑफ अविद्या को क्रिटिसाइज किया है। उसके बाद फिर बहुत सारा टू एंड फ्रो हुआ। वैष्णवों ने कुछ बुक लिखी, फिर मायावादियों ने बुक लिखी, फिर वैष्णवों ने बुक लिखी, मायावादियों ने बुक लिखी। सो आई विल नॉट गो इन डिटेल ऑन दैट because that will unnecessarily expand the topic. But this is how the Sri Vaishnavas tussle with avidya started, right from Shripad, Yamunacharya, and then Ramanujacharya, and then Vedanta Deshika. So we have to understand कि जो सेंट्रल कंसेप्ट है ब्रह्म सूत्र का जो बादरायण वेदव्यास ने लिखा है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ ब्रह्म सूत्र? The central idea of Brahma Sutra is know the nature of Brahman. Isliye it start with Athato Brahma Jigyasa. Let's now inquire about Brahman. So the central idea of Vedanta Sutra is to know what Brahman is, what is the nature of Brahman, what is the nature of energies of Brahman, what are the qualities of Brahman, how Brahman manifests into this Jagat and Jiva, what is the संबंध between Brahman। और हमने आपको अगर याद हो हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से वेदांत सूत्र इज डिवाइडेड और उसके चैप्टर्स जो है संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान में डिवाइडेड है। किसी को याद है चीज? वी डिस्कस्ड ऑन दैट। या मतलब 4 अध्याय है ब्रह्म सूत्र में जिसमें पहले 2 अध्याय संबंध ज्ञान, तीसरा अध्याय अभिधेय और चौथा अध्याय प्रयोजन से डील करता है। ये if you remember we read it from one of the purpose the Srila Prabhupada wrote in 7th chapter of Adi Leela। तो वो संबंध अभिधेय प्रयोजन ब्रह्म के साथ जो जीव का है दैट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ ब्रह्म सूत्र। और उसी को जितने भी आचार्यज हैं वो उसी कंसेप्ट को अपनी फिलॉसफी के बेसिस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो उनका मत है चाहे वो अद्वैत वेदांत हो या वैष्णव वेदांत हो वो उस संबंध को कैसे एक्सप्लेन करता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आई गेस सॉरी डिस्कस नहीं किया था दैट देयर आर two types of scriptures। One scriptures who establish the principle of Advaita Vedanta that Brahman is one, Jagat is mithya, the Jagat is due to the the imposition of avidya on Brahman, that the Jagat manifests, the Jiva manifests। It's not that Upanishads don't talk about Advaita aspect. And it is also not that the Upanishads don't talk about Dvaita aspect. They also talk about Brahman having qualities and attributes. And I remember we had the discussion that the Mayavadis, they say there are two types of scriptures. The Mayavadis divide scriptures into two categories, the Abheda scriptures and Abheda scriptures. Abheda scriptures are those scriptures who establish the oneness of Brahman, the non-dual nature of Brahman, whereas the Abheda scriptures establish the dual nature of Brahman. And the Mayavadis, they say that the Abhed scriptures are the primary scriptures and the Abhed scriptures are the secondary scriptures। Then this is a problematic concept because the Shastras are absolute from all perspectives. Therefore, saying that the Bhed scriptures, therefore dividing the scriptures into Bhed scriptures and Abhed scriptures, and not, let alone, it's not about dividing Shrutis and Smritis.
The Mayavadis are dividing Shrutis, they are dividing Upanishads into Bhed and Abhed scriptures. As per Vaishnavacharya, this is an offense to scriptures because each and every word coming from scriptures is absolute and categorizing scriptures on the basis of whether they establish Brahman as one or not is uh, is directly or indirectly an offense to Brahman. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu um, harmonizes both Bheda and Abheda scriptures and he brings out Bheda Bhed Tattva Siddhanta, establishing both oneness and difference between Jiva and Brahman, Jagat and Brahman, Jiva and Jagat. There is oneness at the same time. Um, there is also difference between them. How is that? We have already discussed it. I'm not going to. And then later on, there is this idea among Mayavadis that why is Advaita Vedanta called Mayavad? And this is also an argument being placed upon ISKCONites that ISKCON followers, especially Srila Prabhupada, um, was the first one to call out Mayavadis as Mayavadis. But Srila Prabhupada ain't the first one. Sri Chaitanya Mahaprabhu did. He said Mayavad Bhashya Sunile Hari Sarvanash. And even Sri Chaitanya Mahaprabhu is not the first one. Lord Shiva, who is Lord Shankaracharya himself, he was the first one. He says in Padma Puran, कलौ प्रथम संध्यायाम क्या श्लोक है वो where I come as a Brahman, Mayavadam Shastram Prachannam Bodham Uchite. I establish Mayavad, which is covered Buddhism. So it comes from Brahman Puran. So this concept of Mayavad is not invented by Gaudiya Vaishnavas or ISKCON or Srila Prabhupada in particular. But the Mayavadis, they say, why are you calling us Mayavad? We say because you define this Jagat as an transformation of Maya. Everything that exists, be it Ishwar, Jeev, or Prakriti, is all Maya as per you. And therefore, because Maya is such a predominant aspect, a predominant factor in your Siddhanta, therefore we call you Mayavad. But Mayavadis, they have a difference. They say, no, you should not call us Mayavadis or call the philosophy. You should call it Brahmavad because Brahman is the central figure in Advaita Vedanta. The ultimate goal of everything is Brahman. It is Brahman alone which exists. And due to the superimposition of Vidya and Brahman, Jiva and Jagat is produced. But Brahman remains the central figure. And the ultimate goal of Jiva is to become Brahman as well. Jagat is also nothing but transformation of Brahman, or rather, um, um, a perspective of seeing Brahman, an ignorant perspective of seeing Brahman. So Brahman is the central figure, therefore we should be called Brahma. But the scriptures call Mayavadis because ultimately they say Maya is more powerful than Brahman. And we'll discuss how Sripad Ramanuja establishing the same as well. When the Mayavadis they say that Brahman was overpowered by Maya, um, and therefore it appears at least, although maybe the Mayavadis won't agree that Maya is more powerful than Brahman, and hence Mayavad perfectly suits their philosophy instead of Brahmavad. And Sripad Ramanujacharya in his Sri Bhashya, he has spent a significant amount of time rebutting Advaita Vedanta. And several critics of Sripad Ramanujacharya, they had this opinion that why has Ramanujacharya put in so much efforts and energy into uprooting and refuting Mayavad when he could have given that energy in establishing Bhakti, Bhakti Yoga as the topmost form of achieving Brahman. But we have to understand it that all of our acharyas, starting from Sripad Ramanujacharya, and then Sripad Madhva, Sripad Nimbarka, Sripad Vishnu Goswami, and then Sarup Goswami, Shajiv Goswami, they have spent considerable amount of time uprooting up Siddhanta because it is very important to, as the common sense says, it is very important to uproot imperfect and improper philosophies to establish authentic philosophies. Therefore, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in his last days, he says, I actually came to give the Prema Bhakti as propounded and established by Sri Rup and Raghunath, but most of my time was spent in uprooting the weeds of Sahajiaism and impersonalism. Because you cannot establish Shuddha Bhakti, you cannot grow grains in a field which is overpopulated and overcrowded by weeds.
In that way, you might spend a lot of time and energy in sowing the seeds and looking after them and giving them water and minerals. Eventually, all of them will be consumed by the weeds and you won't get any crops. Therefore, to ensure perfect crop delivery, we have to uproot weeds so that only grains do exist in the field. Similarly, if we don't give sufficient time in uprooting the Siddhanta and we just talk about the bhakti aspect of the absolute, eventually it will happen that both of them will merge and you will have an impersonal bhakti platform as it is quite popular in areas of Bengal. Chaitanya Path, Shankara Ramat. We have to go through the path as propounded by Sri Chaitanya Mahaprabhu of chanting, dancing, but eventually we have to merge it from that. So what's the point? It is eventually so to save us from all the hard work and to save all of our hard labor from going in vain, it is very important to uproot Mayavad uh, and simultaneously establishing pure devotional service. And that's what all of our acharyas did. Prema Vitaran are Pashandadalam. Dui Karya Avadhuta Karani. Sri Krishnadas Kaviraj Goswami writes about Sripal Nityananda Prabhu and Chandrajatama that he has got two purposes. And because Nityananda Prabhu is Adi Guru and the source of Acharya Tattva, all the acharyas they are a master in these two aspects. Prema Vitaran, that establishing Shukra Bhakti, and Pashandadalan, uprooting of Siddhanta. Both of them go hand in hand. Otherwise, if you just do Prema Vitaran, eventually that Prem will merge into Pashand. And if you just do Pashandadalan, you will not be able to establish pure devotional service. All of your life will be spent in uprooting Siddhantas, but you will not contribute anything substantial to the society. नीति 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 में सारा टाइम चला जाएगा ये सिद्धांत गलत ये सिद्धांत गलत ये सिद्धांत गलत है तो सही सिद्धांत क्या है so that is the reason why Srimad Ramanujacharya and all the subsequent acharyas, both in Sri Vaishnava Sampradaya and broader Vaishnava community, has spent so much significant time in uprooting the weed of Mayavad as sown by Sripad um, Shankar. So this is a very short and brief introduction of where we should be starting. We have already discussed much of this before, so I'll not go into that detail again. But I guess we can start with the discussion. Today, the discussion will center around the question: what is the locus of avidya? What is the ashray of avidya? Where does avidya actually exist? And Sripad Ramanujacharya he gives nine arguments. Ramanujacharya and Vedanta Shikananda, they give nine arguments on why the Advaita understanding of avidya is faulty and is full of um, contradictions. So yeah, let's get into that. So सबसे पहले spoiler alert. Advaita Vedanta says everything is one, but Advaita Vedanta itself has got two major schools. Like in Sri Sampradaya, we have two schools, Venkalaya, Tiruvannamalai. इस तरीके से the Advait school or Advait Vedanta has two major schools, Bhamati and Vivaran school. तो आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही Vivarana. Bhamati school is majorly based on teachings of Mandan Mishra, and Vivaran school is based on teachings of Prabhupada. Both of them are primary disciples of Sripad Ramanujan. Sorry, Sripad Sripad, sorry. And there are a lot of grounds that both these schools differ on, and one of them is their understanding of locus of avidya. Where does avidya exactly exist? So we'll go into that how these two schools differ on the understanding of avidya. So the basic question that Sripad Ramanujacharya asked is where is the locus of avidya? Where does it stand and what is its content? Is Brahman if Brahman is really nirgun nirvishesh, then there is no place of avidya to be located. ये श्रीपाद रामानुजाचार्य का पहला क्वेश्चन है मायावादियों को कि ब्राह्मण अगर निर्गुण निर्विशेष है तो अविद्या कहाँ एग्जिस्ट करती है अविद्या का लोकस क्या है अविद्या की पोजीशन क्या है अविद्या का कंटेंट क्या है इसके बारे में मुझे बताइए जो जो भामती स्कूल है इट ब्रिंग्स इन द कंसेप्ट ऑफ
जीव अज्ञानवाद, and Viveran school brings in the concept of Brahma Agyan. ब्रह्म अज्ञान। तो जीव अज्ञानवाद क्या कहता है? That Jiva is the locus of Jiva is the locus of avidya, whereas Brahma Jnanavad says Brahman is the locus of avidya. Locus of avidya. Now इन दोनों ही आर्गुमेंट्स में बहुत सारे लॉजिकल फ्लॉ हरे कृष्णा प्रभु जी, आप शायद स्क्रीन शेयर but करना भूल गए हैं। there is something that I want to show to all of you. मैं पहले वो दिखाता हूँ आप लोगों को, and then we go ahead this discussion. प्रभु जी कृष्णा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। Let's see if I can get it. नहीं, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी क्या? बताया नहीं आप लोगों ने? तो सॉरी बहुत देर से बता रहे सॉरी हैं। सॉरी 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 सॉरी। हाँ, अच्छा मैंने म्यूट किया हुआ है तो क्या एम आई ऑडिबल सभी को ना? सॉरी मैंने खुद को म्यूट किया हुआ है, आई एम सॉरी। एवरीवन कैन सी दिस? हम समझते हैं कैसे श्रीमद् रामानुजाचार्य पहले अद्वैत वेदांत को डिफाइन करते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन। आई थिंक वी ऑल शुड रीड इट, इसलिए आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। पेज नंबर 26। Let's see. 26. Yes, here it is. So here is how Ramanujacharya defines Advaita Vedanta. He says Brahman, the non-differentiated consciousness, is the only reality. And all this manifoldness is imagined in it alone and is false. Clear? Due to the effect of beginningless nascence मतलब अविद्या, ज्ञान या माया, which is unspeakable and nirvachaniya, this manifoldness, this variety, is wrongly imagined in the one non-dual, which is pure consciousness. ये definition सबको समझ में आए? This is the very standard definition of Mayavad or Advaita Vedanta. Is definition clear to everyone? इसमें देखो क्या क्या पॉइंट्स एड्रेस करने से पता है। पहला कह रहे हैं कि ब्रह्मन इज नॉन डिफरेंशिएटेड कॉन्शियसनेस। ब्रह्मन इज वन, इट इज नॉट it has not got multiple aspects or multiple qualities. It is just one entity, one being. This is the first thing that he talks. Is the only reality. There is nothing else that exists but Brahman. Second point that he says. And all this manifoldness is imagined in it alone and is false. दो चीजें कह रहे हैं आप। एक तो कि जो हम डाइवर्सिटी देखते हैं जगत में, वो सब ब्रह्म में ही एग्जिस्ट करती है, ब्रह्म में ही लाई करती है, ब्रह्म के बाहर कुछ नहीं है। और जो ये वैरायटी है ये फॉल्स। चार चीजें कह दी उन्होंने दो लाइन। पांचवा, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ बिगिनिंगलेस नेसेंस, जो अविद्या है जिसकी कभी शुरुआत नहीं हुई, जो अनिर्वचनीय है। दो बातें और कर दी, अविद्या की कभी शुरुआत नहीं हुई और अविद्या अनिर्वचनीय। So 6 points he has addressed. This manifoldness is wrongly imagined in one non-dual Brahman. तो ये जो वैरायटी देख रहे हैं हम इस जगत में, ये अविद्या का लक्षण है, अज्ञान का लक्षण है। ब्रह्म में, जो ब्रह्म में ड्यू टू बिकॉज जीवा इज कंटैमिनेटेड बाय अविद्या, he sees this difference in Brahman, but Brahman is pure consciousness. Total 8 point श्रीपाद रामानुजाचार्य एड्रेस करते हैं in these 5 lines. Is this clear to everyone? How Sripad Ramanujacharya is defining Mayavad?
नहीं आया समझ में? आ गया? क्लियर है? सोचिए मैनिफोल्डनेस एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, मतलब क्या इमेजिन करते हैं उसको? मायावादी कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करती है, इमेजिन स्टेट। अच्छा, हम कहते हैं एग्जिस्ट करती है, बट यहाँ पर श्रीपद रामानुजाचार्य अद्वैत वेदांत पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ठीक है। So it's a very simple thing, but I really like this definition very much. How he has presented everything, all major pillars of Mayavad philosophy in 4 5 lines. 8 points पे address किया है उन्होंने. This shows what a scholarly work. So basically मैं ये बता रहा था कि sorry मैं screen share करना भूल गया. Advait Vedanta has got two schools, Bhamati and Vivaran. So Bhamati school is majorly dependent on the teachings of Mandan Mishra, who is one of the मेजर डिसाइपल्स ऑफ श्रीपाद शंकराचार्य, जिनको उन्होंने जब डिबेट हुई थी ऑन बुद्धिज्म तो मंडन मिश्र को हराया था बिहार। एंड विवरण इज बाय पंतपाद इज अनदर डिसाइपल ऑफ श्रीपाद शंकराचार्य। पंतपाद के बारे में एक स्टोरी है कि ही हैड लॉट ऑफ फेथ ऑन श्रीपाद रामानुजाचार्य, बट आई गेस ही वाज आइदर फ्रॉम लो मतलब छोटी क्लास से थे या फिर ही वाज इलिटरेट समथिंग होता है। So once to test the surrender of Padmapad, तो पद्मपाद जो थे वो नदी के उस पार थे और श्रीपाद रामानुजाचार्य श्रीपाद शंकराचार्य जो है वो नदी के इस पार थे। एंड ही सेड पद्मपाद, उन्होंने बोला जो उनका जो भी नाम था पद्मपाद का पहले, सेड कम हियर। एंड पद्मपाद ने ये नहीं सोचा कि बीच में नदी है, ही सेड बिकॉज़ माय स्पिरिचुअल मास्टर इज कॉलिंग आई हैव टू गो। सो ही स्टार्ट्स वॉकिंग एंड व्हेन ही स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन रिवर, तो जहां-जहां पैर रखते थे वहां-वहां कमल खिल जाता था, वो कमल पे पैर रख के आगे चले जाते थे। दिस शोड हिज फेथ ऑन स्पिरिचुअल मास्टर कि इफ माय स्पिरिचुअल मास्टर हैज कॉल्ड मी आई विल गो। तो बिकॉज़ जहां-जहां पैर रखते थे वहां-वहां कमल खिल जाता था, इसलिए हिज नेम बिकेम पद्मपाद। यस, स्मॉल स्टोरी। तो जो भामती स्कूल ऑफ मायावाद है वो कहता है कि जीवा इज लोकस ऑफ अविद्या, हेंस जीवा ज्ञानवाद, वेयर एज द विवरण स्कूल सेज ब्रह्म इज द लोकस ऑफ अविद्या। व्हाट डू वी मीन बाय जीवा एंड ब्रह्म लोकस ऑफ अविद्या, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये एक मेजर डिवाइड है इन टू स्कूल्स ऑफ मायावाद, भामती स्कूल एंड विवरण स्कूल। ठीक है, ओके, डिस्कस करते हैं सबसे पहले जीवा। द जीवा इज द लोकस ऑफ ब्रह्म, व्हिच इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ भामती स्कूल। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य इस पे बहुत सारे रेफ्यूटेशंस देते हैं। वो कहते हैं कि देखो एक बात हमें बताओ, इट कैन नॉट बी द फॉर्मर फॉर द इंडिविजुअल सोल कम्स इनटू एक्जिस्टेंस ओनली आफ्टर ब्रह्मन इज कवर्ड बाय इग्नोरेंस। अगर हम ये जानते हैं आर्गुमेंट दैट जीवा कम्स आफ्टर अविद्या, क्योंकि ब्रह्म पर जीव का जब सुपर इम्पोजिशन होता है, सॉरी ब्रह्म पर अविद्या का जो सुपर इम्पोजिशन होता है तो जीव बनता है। तो इसका मतलब जीव इज रिजल्ट ऑफ अविद्या। सो हाउ कैन जीव बी लोकस ऑफ विद्या? दिस इज द फर्स्ट आर्गुमेंट दैट श्रीपाद रामानुजाचार्य gives. He says it cannot be the former. It cannot be that Jiva is the locus of avidya because Jiva comes into existence only after Brahman is covered by ignorance. So, avidya is the effect of Brahman being covered by ignorance. So therefore, Jiva is the effect of Brahman being covered by ignorance. Therefore, Jiva cannot be the locus or Jiva cannot be the ashray of avidya. This is the first argument. तो इस आर्ग्यूमेंट को काटने के लिए मायावादी क्या कहते हैं, जो भामती स्कूल है, जो भामती स्कूल से पूछा गया कि भाई देखो एक बात हमें बताओ, तुम कह रहे हो कि जीव अविद्या का आश्रय है, जीव में अविद्या है, ब्रह्म में अविद्या नहीं हो सकती क्योंकि ब्रह्म तो ज्ञान में है, ब्रह्म में अविद्या कैसे हो सकती है? तो दूसरा चीज क्या है? तो ब्रह्म है, जीव है, तो जीव में अविद्या होगी। तो लेकिन जीव तो अविद्या का रिजल्ट है, तो जीव में अविद्या कैसे हो सकती है? तो भामती स्कूल आंसर करते हैं, भामती स्कूल के मायावादी विशेष रूप से मंडन मिश्र आंसर करते हैं कि देखो अविद्या में कुछ भी ऐसा नहीं है जो जो कंसिस्टेंट है, जो प्रोबेबल है, जो लेजिटिमेट है, जो लॉजिकल है। अविद्या का ये स्वभाव है कि वो मॉडर्न कॉमन सेंस से परे है। मंडन मिश्र कहते हैं कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अविद्या बाय मंडेन लॉजिक, कि बिकॉज जीवा इज अ रिजल्ट ऑफ अविद्या देयरफॉर अविद्या कैन नॉट हैव इट्स लोकस ऑन जीवा। He says avidya is avidya because avidya is not logical, avidya is not legitimate, avidya is not consistent, avidya is not probable,
And because these attributes cannot be ascertained on avidya, therefore, my dear friend, Mandan Mishra says to Sri Vaishnavas, therefore, my dear friend, you cannot project the logic of material world or the logic of mundane world onto avidya. The very reason it is avidya is because it cannot be explained and has got no legitimate logical sense to it. तो कह रही है अविद्या है ना, ये तो ऐसे थोड़ी बिगड़ी हुई है, तो इसलिए हम इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि ये लॉजिकल सेंस नहीं बनाता इसलिए अविद्या का नहीं होता। भाई लॉजिकल सेंस नहीं बनाता इसलिए तो अविद्या है। दिस इज the argument that Shripad, that Mandan Mishra gives to Sri Vaishnavism, the counter argument. ठीक है, ये पहला है। दूसरा पॉइंट ये कहा जाता है श्री वैष्णवों के द्वारा कि आप ये कह रहे हैं कि देखिए जीव लोकस है अविद्या का, क्योंकि माया क्योंकि ब्रह्म लोकस नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म तो ज्ञान में है, तो इसलिए ब्रह्म तो अविद्या का आश्रय नहीं हो सकता, इसलिए जीव अविद्या का आश्रय। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं प्रभु अविद्या ब्रह्म तो जीव से अभिन्न है, या कहिए जीव तो ब्रह्म से अभिन्न है। तो अगर जीव ब्रह्म से अभिन्न है तो जीव अगर अविद्या का आश्रय है, A equals to B, B equals to C, then A equals to C. जीव ब्रह्म से अभिन्न है और जीव विद्या का आश्रय, इसका मतलब ब्रह्म विद्या का आश्रय है, लेकिन ब्रह्म तो ज्ञान में है हे प्रभु। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जीव अविद्या का आश्रय है? तो इस पर मंडन मिश्र आंसर करते हैं प्रभु श्रीपाद रामानुज प्रभु, आप ये समझिए कि परमार्थिक स्तर पर जीव ब्रह्म में अभेद है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर तो जीव और ब्रह्म बिल्कुल तो अलग अलग एंटिटीज है। इसीलिए व्यवहारिक स्तर पर जीव ब्रह्म में भेद है और व्यवहारिक स्तर पर ही जीव फिर अविद्या का सुपर इम्पोजिशन होता है। जब जीव परमार्थिक स्तर पर पहुंचता है तो जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता और जीव में अविद्या का कंटेमिनेशन भी नहीं रहता। इसीलिए ये जो अविद्या की सारी चर्चा हो रही है श्रीपाद रामानुजाचार्य प्रभु, वो सारी चर्चा इसीलिए हो रही है कि जीव अभी परमार्थिक स्तर पर नहीं है, वो व्यवहारिक स्तर पर। इसीलिए ये कहना कि जीव पर अविद्या का लोकस है, इसका मतलब है कि ब्रह्म पर भी अविद्या का लोकस है क्योंकि जीव और ब्रह्म अभेद है, ये सही नहीं। इसी प्रकार से हम जितने भी आर्गुमेंट्स हम डिस्कस करेंगे उसका दिस बुक आल्सो मेंशन्स द काउंटर आर्गुमेंट बाय मायावादीज, बट वी विल नॉट गो इनटू काउंटर आर्गुमेंट बिकॉज दैट इज नॉट आवर फोकस। आवर फोकस इज टू स्टडी व्हाट आवर वैष्णवाचार्य से, एंड मे बी आज से 15, 20, 25 साल बाद जब आप में से कोई बड़ा स्कॉलर बन जाएगा गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी का, then he can also study the counter arguments. But for now we will avoid counter arguments. We will just study what Vaishnavacharya has said. What is the counter argument from the side of Mayavadis? We will not go into that. But यहाँ पे just मैंने आपको एक आइडिया दिया किस प्रकार से there are also counter arguments coming from Mayavadis about this. So there are two questions raised by Shripad Ramanujacharya when the Bhamati school says that Jiva is locus of Vidya. पहला कि अगर जीव अविद्या का लक्षण है, जीव अविद्या का रिजल्ट है, जीव अविद्या का इफेक्ट है, तो हाउ कैन जीवा बी द लोकस ऑफ अविद्या? तो इस पर भामती स्कूल आंसर्स कि आप इस मंडेन लॉजिक को अविद्या पर अप्लाई नहीं कर सकते। अविद्या इज इनकंसिस्टेंट, अविद्या इज अनइंटेलिजिबल, इसलिए लॉजिक से अविद्या को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर किया जाता तो अविद्या अविद्या नहीं होती। पहला आर्ग्यूमेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो श्री वैष्णव देते हैं कि अंततः जो जीव और ब्रह्म का अभेद है, तो अगर जीव लोकस है अविद्या का तो ब्रह्म भी लोकस है अविद्या का। तो इस पर भामती स्कूल कहते हैं, मंडन मिश्र कहते हैं, श्रीपाद मंडन मिश्र कहते हैं कि श्रीमान व्यवहारिक स्तर पर जीव और ब्रह्म में पूर्ण भेद है, इसमें कोई संशय नहीं है, परमार्थिक स्तर पर अभेद है। और जो अविद्या का एग्जिस्टेंस है वो तो व्यवहारिक स्तर पर है, परमार्थिक स्तर पर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसीलिए जीवा इज लोकस ऑफ अविद्या, ब्रह्मन इज नॉट द लोकस ऑफ अविद्या। सो दिस इज द भामती स्कूल। किसी को कुछ अगर कमेंट करना है तो देखिए जस्ट अनम्यूट एंड स्पीक। काउंटर क्या बोलते हैं प्रभु जी रामानुजाचार्य? हाँ जी, इसका काउंटर कुछ बोला है रामानुजाचार्य ने? इसका काउंटर जो बोला भी होगा तो इट इज नॉट मेंशन्ड है। बट एक्चुअली रामानुजाचार्य का आगे हम पढ़ेंगे, देयर आर लॉट मोर आर्गुमेंट्स दैट ही गिव्स टू इट, तो वी विल कम इनटू इट। बहुत आर्गुमेंट्स, इतने आर्गुमेंट्स है, मेरे को कुछ आर्गुमेंट्स इतने टेक्निकल है मुझे समझ में नहीं आया। मैं आई tried writing them a lot of times, but I just decided to skip on that instead of just contemplating some meaning. So there are a lot of arguments given by Shripad Ramanujacharya. We'll come to that.
So next coming to this Vibrant school क्या कहता है that देखो नहीं जीवा is not the locus of माया और अविद्या, ब्रह्मन is the locus of अविद्या. तो इसके लिए आर्गुमेंट क्या देते हैं विवरण स्कूल? पहला आर्गुमेंट देते हैं, यही आर्गुमेंट जो श्रीपाद रामानुजाचार्य यहाँ रेज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि बिकॉज अविद्या प्रीसीड्स जीवा, इसीलिए अविद्या कैन नॉट बी लोकस ऑफ जीवा. दिस इज द फर्स्ट आर्गुमेंट देंगे, मतलब दे गो अगेंस्ट द भामती स्कूल. सेकंड इज दे से yes. Second is they say is कि because avidya precedes jiva, jiva derives its existence, या फिर कह सकते हैं पर्सनैलिटी, या फिर its individuality at the व्यवहारिक stage. Jiva derives its existence from avidya. This is the argument that Vibrant school gives. और इसको भी आगे श्रीपाद रामानुजाचार्य कट कर रहे हैं, दोनों आर्गुमेंट्स कट रहे हैं, बट वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट मायावादी इज सेइंग एट द मोमेंट. एक और आर्गुमेंट जो विब्रेंट स्कूल गिव्स एट दिस पॉइंट इज इट सेज थर्ड इज an individual would not be able to experience avidya if avidya did not have a locus. So why is Vibrant School saying this? Now let's try to understand this. Vibrant School is in contrast with this Bhamati School. Bhamati School कहता है ब्रह्मन अविद्या का आश्रय नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में है और अविद्या और अज्ञान एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, which is later we'll be discussing. But this Vibrant School says कि देखो इस आर्गुमेंट को कैसे आंसर किया जाए. दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो अविद्या का आश्रय ब्रह्म हो सकता है या अविद्या का आश्रय जीव हो सकता है. अगर अविद्या का आश्रय कोई तीसरी चीज है, मान लीजिए अविद्या को तीसरी जगह एग्जिस्ट कर रही है, देन जीवा विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस अविद्या, बिकॉज अविद्या नीड्स टू हैव अ लोकस. विद्या को एक आश्रय होना चाहिए ताकि जीव उस अविद्या को एक्सपीरियंस कर पाए. अगर मैं इस आर्ग्यूमेंट को हटाना चाहूँ कि नहीं ब्रह्म में तो अविद्या का आश्रय नहीं हो सकता, ब्रह्म तो ज्ञान में है, तो फिर ब्रह्म में अविद्या कैसे आश्रय हो सकता है. लेकिन एक अगर इस फैक्ट को मान लिया जाए, मान लीजिए इसको हम एक आर्गुमेंट को स्टैब्लिश कर दें कि ब्रह्म में अविद्या का आश्रय नहीं हो सकता, लेकिन ये एक और फैक्ट है कि जीव तो अविद्या को एक्सपीरियंस कर रहा है, और तीसरा फैक्ट ये है कि बिना लोकस के अविद्या को एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता. तो जीव अविद्या को एक्सपीरियंस कर रहा है, जीव में अविद्या का लोकस नहीं हो सकता, और बिना लोकस के अविद्या को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता. ये तीन आर्ग्यूमेंट्स है. तो तीनों आर्ग्यूमेंट एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं कि ब्रह्म इज द लोकस ऑफ अविद्या. Am I making sense here, Prabhuji? Am I making sense? तीन आर्ग्यूमेंट. जीव जो है अविद्या को एक्सपीरियंस कर रहा है, जीव अविद्या का लोकस नहीं है, और बिना लोकस के जीव अविद्या का एक्सपीरियंस नहीं कर सकता. तीनों चीज एक तरफ पॉइंट करती हैं दैट ब्रह्मन इज द लोकस ऑफ अविद्या एज पर विवरण के रूप. Am I making sense? Am I making sense? नहीं आ रहा है क्या समझ में? बहुत. I can further break it down if you want. ये सेकंड पॉइंट क्या था? जीवा डिराइव्स इट्स एग्जिस्टेंस पर्सनालिटी फ्रॉम अविद्या. मतलब जीव इसलिए एग्जिस्ट करता है ना क्योंकि अविद्या है. अविद्या नहीं होती तो जीव ब्रह्म से अलग क्यों होता? तो वो तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल दिया ना आपने, बिकॉज अविद्या प्रीसीड्स जीवा. तो या दोनों सेम. अविद्या प्रीसीड्स जीवा, बट अविद्या कुड हैव एग्जिस्टेड समवेयर एल्स. हो सकता है आपके घर में रहती हो अविद्या. इन दैट केस आल्सो इट वुड हैव प्रीसीडेड जीवा. अच्छा. हाँ. Is this not clear?
क्लियर है? ठीक है, ओके। Let's assume this is clear. There is one more argument that the Vibrant School gives. Vibrant School argument देता है तुरिया stage. तुरिया stage. तुरिया stage में क्या होता है? It is person is in deep sleep state. And it is not conscious of the self, but still it is not liberated. दो चीजें हैं तुरिया स्टेट. It is not conscious of the self, वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर कि मैं जीव हूँ, इस चीज को लेकर वो कॉन्शियस नहीं है, लेकिन फिर भी वो लिबरेटेड भी नहीं. मतलब उसकी जीवाभूत नहीं है, लेकिन उसकी अविद्या है. मेकिंग सेंस? वो अविद्या में है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल वो अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर कॉन्शियस नहीं है. इग्नोरेंस में है कि हिस्ट्री इग्नोरेंस, और उसका लक्षण क्या है कि इट इज नॉट लिबरेटेड. अभी वो उठेगा तो वापस माया में चला जाएगा. तो ये तो क्लियर है कि वो व्यक्ति लिबरेटेड नहीं है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर पूरी तरह कॉन्शियस भी नहीं है कि मैं फला फला हूँ, मैं बीटेक कर रहा हूँ, एमटेक कर रहा हूँ, यहाँ जॉब कर रहा हूँ, वहां जॉब कर रहा हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरी मम्मी है, पापा, इन सब चीजों को लेकर भी वो कॉन्शियस नहीं है, डीप स्लीप स्टेट है. तो वो अपनी जीवाहुद को लेकर कॉन्शियस नहीं है, लेकिन अविद्या अभी भी है उसको. The Vibrant School says जीवाहुद doesn't exist or almost doesn't exist, but the avidya is there. Hence, avidya can exist independent of jiva. This is an example of how avidya can exist independent of jiva and curious. And this shows that jiva exists independent of avidya or vice versa. Avidya exists independent of jiva. So this is one more argument. The Vibrant School. So यहाँ पर मायावाद is divided into two, Bhamati and Vibrant School, on what exactly is the locus of avidya. वेदांत, अब आते हैं रिजेक्शन. वेदांत देशिका बात करते हैं जीवा बीइंग द लोकस ऑफ अविद्या. वेदांत देशिका कहते हैं, वेदांत देशिका हो इज अ वेरी प्रोमिनेंट आचार्य श्री वैष्णव बताएंगे. He says, see, देखो दिक्कत ये है, जीवा can't be the locus of avidya. Why can't jiva be the locus of avidya? He gives कि so what does Vedanta say is that jiva cannot be the locus of avidya. Why can't jiva be the locus of avidya? So इसको एक्सप्लेन करने के लिए वेदांत देशिका आर्गुमेंट देते हैं कि आप ये कह रहे हैं that जो जीवा है, it is a reflection of Brahman. Jiva is a reflection of Brahman. But Vedanta Deshika says reflection needs two things: shape and form. But since neither the shape exists nor the form exists of either avidya or Brahman, तो जब ब्रह्म पर अविद्या का कह सकते हैं, जिस प्रकार से प्रोजेक्टर स्क्रीन पर प्रोजेक्शन किया जाता है, उसी प्रकार से जब ब्रह्म पर अविद्या का प्रोजेक्शन होता है, देन जीवा कम्स इनटू एक्जिस्टेंस. ब्रह्म पर अविद्या के प्रोजेक्शन से जीवा कम्स इनटू एक्जिस्टेंस. बट वेदांत देशिका आस्क कि ना तो ब्रह्म का शेप और फॉर्म है, ना अविद्या का शेप और फॉर्म है, तो अविद्या का ब्रह्म पर किस प्रकार से सुपर इम्पोजिशन होगा, किस प्रकार से रिफ्लेक्शन होगा? This reflection cannot exist because the Brahman has neither shape or form nor avidya has shape. But Vedanta Deshika further says, even if reflection is done, even if the Brahman, even if अगर अविद्या का मैं रिफ्लेक्शन ब्रह्म पे ले रहा हूँ और उससे जीव एग्जिस्ट कर रहा है, and jiva is the locus of avidya, there are three types of problems with jiva being the locus of avidya. Sripad Vedanta Deshika कह रहे हैं, this is little philosophical, I understand, and there is a lot of background that I have not given. I also understand that. इसीलिए it is quite probable that few of my statements won't make sense, and if you pinpoint it, then we may go deeper in that. But if you are getting it, that's awesome. Why am I skipping on few points? Because we have covered Mayavad in depth, Jeev, Avidya, Brahman, their nature,
how avidya or jiva comes into existence and what is Mayavad understanding of it. We have covered all of this in very detail. Therefore, I'm skipping a lot of things, but it is very philosophical. So if it is difficult to understand at times, please feel free to point out. Sripad Vedanta Deshika says, if you say Jiva is the locus of Brahman, there are three fundamental questions which follows. Where does Jiva exist? Where does Avidya exist in Jiva? If you say Jiva is the locus of Brahman, where does Avidya exist in Jiva? Ya to in its absolute form as Brahman, absolute form as Brahman, or in the inert body, or in its essential nature. Now, what do we mean by this? वेदांत देशिका कहते हैं ठीक है, मान लो कि जीवा इज द लोकस ऑफ अविद्या, जीव में अविद्या का वास है। तो जीव अविद्या में कहाँ रहती है? जिस प्रकार से एक बार श्री प्रभुपाद was sitting in one of the lecture of his disciple and disciple says कृष्ण अपने नाम में, and Srila Prabhupada immediately stopped. He said कृष्ण अपने नाम में कहाँ रहते हैं? कृष्ण क में रहते हैं, री में रहते हैं, अणा में रहते हैं, श में रहते हैं, ऊपर वाली डंडी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं कृष्ण? इसी प्रकार से वेदांत दर्शिका is asking the question to Mayavadis, if अविद्या exists in जीवा, वो कहाँ exist करती है? तो जीव के तीन एस्पेक्ट, जीव एज पर मायावादी जीव के एग्जिस्टेंस के तीन एस्पेक्ट्स। पहला, जीव का सच्चिदानंदमय स्वरूप जिसमें वो ब्रह्म है। तो वेदांत दर्शिका पूछते हैं क्या अविद्या जीव का जो वो नित्य स्वरूप है, जो उसकी आत्मा का स्वरूप है, जो अविद्या के द्वारा ढक लिया गया है, तो क्या उस आत्मा के स्वरूप में अविद्या वास करती है? अगर उसके सच्चिदानंद में जो चिन्मय स्वरूप है उसमें अविद्या वास करती है, तो फिर इसका मतलब अविद्या ब्रह्म में वास कर रही है, क्योंकि जीव परमार्थिक स्तर पर ब्रह्म ही है, तो इसलिए इट मस्ट एग्जिस्ट इन ब्रह्म। कहते नहीं नहीं, जीव तो ब्रह्म तो में तो अविद्या नहीं हो सकती, इसकी का केस तो हम लड़ रहे हैं। तो नहीं नहीं नहीं, जीव वो उस स्तर पे नहीं है। अच्छा ठीक है, तो दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि जीव के पास शरीर है, जो जड़ शरीर है, तो जड़ शरीर में अविद्या का वास होगा। कह रहे जड़ शरीर में अविद्या का वास होगा, लेकिन जड़ शरीर में अविद्या का कैसे वास हो सकता है? और अगर जड़ शरीर में अविद्या का वास है, इसका मतलब वो जड़ शरीर तो कभी अविद्या से निकल नहीं सकता, क्योंकि अविद्या से निकलने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जीव ये एफर्ट करे कि मैं अविद्या से बाहर निकलूं। ही शुड हैव दिस डिजायर, उस डिजायर से वो ब्रह्म प्राप्ति करेगा और अविद्या से बाहर निकलेगा। उस डिजायर से वो रिजल्ट, उस डिजायर से ही विल ऑब्टेन ब्रह्म। लेकिन इनर्ट मैटर में तो कोई डिजायर ही नहीं होती, तो इनर्ट मैटर कभी भी अविद्या से बाहर नहीं आ सकता। तो फिर इनर्ट मैटर कैसे अविद्या का लोकस हो जाएगा? जो शरीर है, जैसे सपोज एग्जांपल मैं अपनी बात, तो मैं तीन लेवल पे एग्जिस्ट करता हूं। एक तो मेरा सच्चिदानंद में स्वरूप है जिसमें मैं ब्रह्म हूं एज पर महावीर। क्या उस आइडेंटिटी में अविद्या का वास हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मतलब है अविद्या ब्रह्म पे एग्जिस्ट करती है, ब्रह्म लोकस है, रिजेक्टेड एज पर विवरण स्कूल। सेकेंड, ये जो मेरा शरीर है, जड़ शरीर, ये जड़ शरीर अविद्या का आश्रय है, लोकस है। पर जड़ शरीर की तो अपनी कुछ डिजायर्स नहीं है, तो जड़ शरीर कैसे अविद्या का आश्रय हो सकता है? और अगर जड़ शरीर अविद्या का आश्रय हो गया तो वो अविद्या से मुक्त कैसे होगा? इसका तो कभी अपनी इंडिपेंडेंट डिजायर्स हो नहीं सकती। और तीसरा हो सकता है मेरा स्वभाव। क्या मेरा स्वभाव में अविद्या का वास है? लेकिन ये स्वभाव भी इट इज ऑल्सो टेम्पररी कंस्ट्रक्ट, ये स्वभाव भी मेरा इटर्नल नेचर नहीं है, तो फिर यहाँ पर भी अविद्या का कैसे वास हो सकता है? दिस स्वभाव इज ऑल्सो टेम्पररी, इट विल चेंज, माय नेचर, माय एसेंशियल नेचर विल चेंज, my mind intelligence ego will change, it will transform and transmigrate into other things. So how can avidya have a locus in my essential nature? So in all the three arguments, चाहे वो मेरे सच्चिदानंद में स्वरूप में अविद्या का लोकस हो सकता है, या फिर मेरे जड़ शरीर में, या फिर मेरे एसेंशियल नेचर में जो मेरा चित स्वरूप है, स्वभाव है, इन तीनों ही लेवल्स पर श्रीपाद वेदांत ऋषिका रिजेक्ट्स की तीनों ही लेवल पर ब्रह्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता ड्यू टू लॉजिकल फैलेसी। सॉरी, इन तीनों ही लेवल पर अविद्या एग्जिस्ट नहीं कर सकती ड्यू टू लॉजिकल फैलेसीज। एंड therefore श्रीपाद वेदांत ऋषिका says that avidya cannot have its locus on jiva,
In this way, he rejects the Vibrant school of. He rejects the Vibrant school of. Am I making sense, Prodigy? भामती वही विवरण स्कूल भामती स्कूल को किया ना रिजेक्ट। Bhamti. Yes, sorry, Bhamti. Now coming to ये if this makes sense to you, क्या कहते हैं अपने प्रशांत प्रभु? जी प्रभु जी भामती स्कूल का था ना ये तो भामती स्कूल क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? भामती स्कूल पे था कैसे क्लब करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, वैसे ये जी। बात अपना विवरण स्कूल भी अभी कवर करता है। विवरण स्कूल पर भी श्रीपाद रामानुजाचार्य जो है वो ब्रह्म अज्ञानवाद पर भी 4-5 आर्गुमेंट्स देते हैं क्यों ब्रह्म अज्ञानवाद ही सही है। पहला आर्गुमेंट कि हम जानते हैं ब्रह्मन इज सेल्फ इल्यूमिनस। ब्रह्मन की बहुत सारी क्वालिटीज है, उसमें एक है ददीप्यमान, है ना, प्रकाशमय है। इट इज सेल्फ इल्यूमिनस ब्रह्मन। Yes, it is self-illuminous. So Brahman is self-illuminous, but also Brahman is the ashraya of avidya, and avidya का लक्षण है अज्ञान। How can prakash and andhakar? Sorry, avidya का लक्षण है अंधकार। So how can prakash and andhakar coexist? Try to understand the point. Brahman is the ashraya of prakash, and Brahman is also ashraya of avidya, and avidya is ashraya of andhakar. So how can prakash and andhakar coexist in Brahman? It is contradicting Brahman's innate nature as self-illuminous. If Brahman is self-illuminous, it cannot have anything which is dark. And avidya by its very nature is dark, prakashaheen. And therefore it contradicts Brahman's nature of being self-illuminous. And therefore, first argument of why Brahman cannot be the locus of avidya, as per Sripad Ramanujacharya. Second is knowledge. Brahman is jnana, but the nature of avidya is agyan. How can Jnana and Ajnan coexist in Brahman? Is a second. तीसरा जो लक्षण है ब्राह्मण का वो है omniscient, ये सर्वव्यापी। सर्वव्यापी। So if Brahman is सर्वव्यापी, and Brahman also has got avidya, and avidya का लक्षण है bondage create करना, बांधना। So अगर अविद्या बांध रही है और ब्रह्म निर्बाध है, उसे बांधा नहीं जा सकता, तो ब्रह्म में अविद्या कैसे एग्जिस्ट कर रही है? This is the third argument that Sripad Ramanujacharya gives. If Brahman is omniscient, it is everywhere. But Brahman has also got avidya, and the nature of avidya is to cause bondage. How can avidya exist in Brahman? So this is the third argument that Sripad Ramanujacharya gives. And fourth argument that Sripad Ramanujacharya gives is, again, Brahman is, Brahman is eternally free. Brahman cannot be bound. But again, Brahman has Maya. Maya causes bondage. How can Brahman has Maya? श्रीपाद रामानुजाचार्य यहाँ पर बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी कि ब्राह्मण का जो स्वभाव है वो सच्चिदानंद में स्वभाव, और जो अविद्या का स्वभाव है वो असत है, असत है, अचित है और निरानंद ना। ब्रह्मन का स्वरूप सच्चिदानंद है और माया का स्वरूप या अविद्या का स्वरूप है असत, अचित और निरानंद। एंड देयरफॉर बाय देयर वेरी नेचर the Brahman and Maya are contradictory, and therefore it is very weird and difficult to understand how Brahman and Maya, both of them, can exist simultaneously. They can coexist within Brahman. Maya can also exist because Maya is essentially contradicting Brahman's innate nature of Satchidananda Maya. Am I making sense here, Rogis? How our Vaishnava Acharyas have refuted both Bhamati school and Vivrant school. Jiva cannot be the locus of avidya because avidya precedes Jiva. Pehla argument. Dusra argument, even if avidya exists in Jiva, where does avidya exactly exist in Jiva? Dusra argument. Or what was the third argument?
Uh, there was one more argument that they gave. हाँ कि um, if Jiva is comes into existence by reflection of avidya on Brahman, avidya doesn't have shape and form, Brahman doesn't have shape and form. How can one shapeless and formless object, colorless, shapeless, formless object, have its reflection on another shapeless, formless, colorless object and create something which has shape, form, and color? Am I making sense here? Avidya has no shape, form, color. Brahman has no shape, form, color. But they somehow combine and form Jiva or Jagat, Shrishti, which has shape, form, and color. How can this come into existence? This is against Jiva Jnana. And against Brahma Jnana, Acharya say that Brahman is Sachidananda. But the nature of Jiva is against the nature of Brahman. And therefore, Jiva cannot exist in Brahman. This is how our Acharyas proved Brahman being the locus of avidya and Jiva being the locus of avidya. Right? We'll not discuss this although, but we all know that Parasta Shakti Vividhaiva Shruti, our Acharyas further established that avidya exists independent of Brahman, although it is dependent on Brahman for its existence. So avidya is Brahman's Shakti. Shakti is having different existence from Brahman, but still it is not absolutely independent from him. There is nothing absolutely independent from Brahman. We also not independent from Brahman. Brahman is the only independent. But we all have a separate existence at the same time dependent on Brahman. We are all, in one sense, Jiva is eternal, but in another sense, Jiva is dependent on Brahman. But Jiva also has its independent existence other than Brahman. Where Mayavadis they disagree. They say Jiva and Jagat, both of them uh, are observed due to imperfection or ignorance of Jiva. And only Brahman exists. And everything else is mithya. Am I making sense, Prozis? कुछ बोल दिया करो. हाँ, ठीक है. Okay. Now from Vedant Deshika and Sripad Ramanujacharya, let's come to another prominent Vaishnava Acharya's name by the name Sudarshan. He also explains how Jiva cannot be the locus of avidya. इसमें वो I guess तीन major arguments हैं. पहला, the problem of infinite regress. I think यही था इसका नाम. इसी को कहा जाता है अनावस्था. अनावस्था. स्क्रीन दोबारा से हट गई. सॉरी, आई थिंक मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी. आई एम सॉरी. सॉरी. What is the problem of anavastha? So what is the problem of anavastha? Let me read the definition for it. And then अच्छा हाँ, एक और आर्गुमेंट सॉरी जो मैं बात करना भूल गया. वेदांत ऋषि का एक और आर्गुमेंट देते हैं, एक और क्वेश्चन रेज करते हैं. क्वेश्चन रेज करते हैं, इज अविद्या वन और मैनी? क्या अविद्या का सिर्फ एक भाषा का? इफ अविद्या इज वन, देन वेदांत ऋषि का कहते हैं, इफ वन जीवा इज लिबरेटेड, मतलब Brahman has overpowered avidya in one jiva, then it must be able to overpower avidya in all other jivas. If one jiva is liberated,
All other jivas must be liberated as well. All other jivas must be liberated as well. And if one jiva is bound, and if one jiva is bound, sorry for bad handwriting. And if one jiva is bound, we cannot say that all jivas of this world are liberated, because अभी भी एक ऐसा जीव है जहां पर जो अविद्या है उसने ब्रह्म को डोमिनेट किया हुआ है। इसका मतलब अभी भी अविद्या ब्रह्म से ज्यादा पावरफुल है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर एक जीव, अगर एक ही अविद्या का एक ही प्रकार है, there is only one type of avidya, and if one jiva is liberated, Brahman has overpowered avidya in one jiva, then it can overpower avidya in all other jivas. No problem at all. And even if one jiva is still bound, इसका मतलब अभी भी एक ऐसा जीव है जहां पर अविद्या has overpowered Brahman. So in that case, all the jivas are still bound and still in bondage and still not liberated. This is the case when jiva is one. So if this is the case if avidya is of only one type. If avidya is of many types, then the question comes, which came first, jiva or avidya? If avidya is of many types, इस क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे। यही है fallacy of infinite recurrence, जिसको शंकरशन सॉरी सुदर्शन डिस्कस कर रहे थे। Which came first, अविद्या? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अविद्या और जीवा। दिस इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन इन फॉर मायावादी। पहले क्या आया, अविद्या आया कि पहले जीव आया? और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो भामती स्कूल है उसके सामने रखा जा चुका है कि पहले क्या आया, जीव आया या अविद्या आया? अगर अविद्या जीव का लोकस है, इसका मतलब है, सॉरी, जीव अगर अविद्या का लोकस है तो इसका मतलब है जीव को पहले आना चाहिए। लेकिन later on it is established that avidya precedes jiva, and therefore avidya cannot be the locus of jiva, because jiva is the effect of avidya, not the cause of avidya. Avidya is the cause of jiva. Cause precedes effect, cause leads to effect, है ना? तो इसीलिए ये क्वेश्चन वेदांत देशिका पूछते हैं कि अगर अविद्या कई सारी है तो पहले क्या कि पहले जीव आए? Either way, this leads to the fallacy of reciprocal dependence. When the avidyas as located in many jivas are known to be many, it follows that jivas are many. When jivas are established to be many, what is the there is a plurality of avidyas abiding for them. So Sripad Vedanta Shika says, if avidyas are many, it means the jiva should also be many. And if jiva are many, their nature is many, how is all of the jivas same? And same with Brahman. So what argument he says is, if avidya is many, the jiva should also be many. Because every jiva will have different level of ignorance by their very nature. And if jivas are many, how can we say that all the jivas are same? And same with the universal Brahman. If avidya is of many times, how is it decided will be overpowered by what type of avidya? If all the jivas they have the same history, in Vaishnavism all of the jivas they don't have the same history. When jivas, although this is a controversial question, how jivas come into material world, but once in the material world, the level of ignorance depends on their karmic reactions and their karmas. But in Mayavada, if all of the jivas have their origin in Brahman, they have same history. They don't have different history. They don't have different karmic reactions. They have the same history. But if they are overpowered by avidya differently, it means they must be different. There must be some differentiating factor. Otherwise, how would avidya decide which jiva, how would Maya or avidya decide how to cover a specific jiva? If there is jiva 1, jiva 2, both coming from the same Brahman, both having the same caste, but they were overpowered by different avidyas. And if it was decided that they must be overpowered by two different types of avidyas, they must have had different past. But they cannot have different past.
because they are coming from same Brahman. So there is logical fallacy. प्रभु जी इसमें जीव को पहले माना गया है क्या अविद्या से, क्योंकि मतलब उसका एग्जिस्टेंस तभी है पॉसिबल है जो आप बोल रहे हैं कि हाँ जीव मतलब हाँ, इसलिए तो क्वेश्चन पूछा गया इसके फर्स्ट अविद्या और जीव। इसका मतलब जीव पहले आएगा, फिर जीव डिसीजंस देगा, फिर जीव संस्कार डेवलप करेगा, कार्मिक रिएक्शन डेवलप करेगा, एंड देन इट विल बी ओवरपावर्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ अविद्या। बट जीव इज द इफेक्ट ऑफ अविद्या। तो जीव से अविद्या आई, ये जीव के बाद अविद्या आई, या अविद्या के बाद जीव? We are into a logical fallacy. Am I making sense here? fallacy कैसे हुई? इसके अंदर तो क्लियरली बोल सकते हैं ना कि पहले अविद्या आई थी, फिर उसने जीवा पे कर दिया। नहीं सॉरी, जीव पहले जीवा आया था। जीव कैसे आया? नहीं, लेकिन ये तो हमने मान लिया ना, भ्रांति स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो मतलब दोनों में से एक स्कूल लेके चलना पड़ेगा ना पहले। ठीक है, चलो एक स्कूल ले लो। हाँ, भ्रांति स्कूल ले लिया तो भ्रांति स्कूल वाले मानते हैं कि जीवा के ऊपर जीवा कम्स आफ्टर अविद्या, ठीक है, अविद्या पहले आई मतलब, ठीक है आगे ना। आगे। तो अविद्या पहले आई तो उसने जीवों को कवर किया बहुत सारे। एक मिनट, यार इस बात का सेंस तो बड़े बड़े वैष्णव आचार्य नहीं लगा पाए, जो क्या लगाए। तो जी भामिति स्कूल के इसका अकॉर्डिंग प्रॉब्लम ही है प्रभु जी, प्रॉब्लम ही है, इसमें क्लियर नहीं होगा। तो जी ऐसा बोल सकते हैं ना कि अविद्या बहुत सारी थी, अविद्या पहले आई, अविद्या बहुत सारी थी, और डिफरेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बहुत सारी अविद्या कहाँ से, और फिर मान लो बहुत सारी अविद्या आ गई तो ये कैसे पता चला कौन सी अविद्या कौन सी कौन सी बड़ा मतलब है वो नहीं, संभव। जीवा सारे सेम थे, जीवा सारे सेम थे। फिर अलग अलग अविद्याओं ने जैसे सेम जीवासु किया ना, तो जैसे पानी साफ है, अलग अलग मसाले आ गए, वो अलग अलग सेम पानी में जाएंगे तो अलग अलग बनाएंगे ना वैसे। और फिर ये आपने डिसाइड कैसे किया कि कौन से पानी में कौन सा मसाला? वो उसमें डिसाइड करना ही नहीं है ना, सारे जीव सेम है। सारे जीव सेम, ठीक है, ओके, सारे जीव सेम है। जैसे मान लो कि 5 जीवात्माएं खड़ी हैं, अभी उनको जाना है ब्रह्म से जीव बन, ठीक है, और 5 अविद्या का पैकेट है, और ये है कि 0.5 अविद्या का, although it is very rudimentary and very wrong way of explaining, but just for sake of explanation, 5 जीव खड़े हैं, 5 अलग अलग तरह की अविद्या है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि इस जीव को कौन सी अविद्या मिली? एक्चुअली प्रभु ये तो भामती रह ही नहीं गया ना, क्योंकि इसमें जीवा पहले ही डिसाइड कर लिए हैं। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। जीव आ गया, जीव के बाद मैं तो हेमंत गुरु का आर्ग्यूमेंट है, इससे आई एम ट्राइंग टू आंसर। नहीं मान लेकिन लो लेट्स से अविद्या बाद में आती, जीव पहले आती, लेट्स हाँ, फिर भी आप कैसे डिसाइड करो कि जीव का पाथ तो सेम है? वैष्णव अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जब गौड़ीय वैष्णव अंडरस्टैंडिंग कि जब जीव स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आता है, अगर आता है, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल पॉइंट, अगर आता है, इट फर्स्ट गोज टू ब्रह्मलोक, एंड ब्रह्मलोक में दे ऑल गेट अपॉर्चुनिटी टू गो बैक टू स्पिरिचुअल डायरेक्टली फ्रॉम ब्रह्मलोक विदाउट कमिंग टू लोअर प्लैनेट्स। बट वहां पर if they engage in such gratification, फिर वो नीचे 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 बस नहीं आता कि मान लो 2 जीव जो है उनका वैकुंठ से पतन होने वाला है, तो एक को सुअर बना दिया और एक को पिंडीस बना दिया। So in that way we cannot say भगवान कैसे कह रहे हैं समोहम समोह भूतेषु में द्वेषोऽस्ति नास्ति। अब तो समोहम है नहीं, यू आर पार्शियल। प्रभु जी कंट्रोवर्शियल है। ये तो वो भले कंट्रोवर्शियल, ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये तो क्लियर है। लेकिन मान ये लो ब्रह्मलोक में आता है कि डायरेक्ट आता है कि आता भी नहीं है, ये भी कंट्रोवर्शियल है ना। हाँ ये तो भाई मतलब कंट्रोवर्शियल ये है, लॉजिकल फैलेसी। तो लेकिन अगर इसके अंदर अपन भ्रांति स्कूल को लेके चल रहे हैं और हम आपने 5 अविद्या के पैकेट डिफाइन कर दिए, भी जीवा तो है ही नहीं ना अभी तो, भी वो हाँ तो भैया आप ये आर्गुमेंट लेकर आए, इससे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो जीवा नहीं है, हटा दो जीवा, चलो छोड़ो यार, नहीं है जीवा। आप बताओ आप क्या कह रहे अब भी ये 5 पैकेट्स सुपर इम्पोज होंगे तो 5 जीवा क्रिएट हो जाएंगे अलग अलग।
क्या कह रहे? सॉरी सॉरी, ये आवाज 5 क्लियर नहीं आ रही। ये 5 जो माया के पैकेट है ना, ये जब जिस पे भी सुपर इम्पोज होंगे भ्रांति, जो भी भ्रांति स्कूल वाले मानते हैं, जिस पे भी हम सुपर इम्पोज होंगे तो 5 प्रकार के जीवा क्रिएट हो जाएंगे। बहुत ऐसा इसलिए क्योंकि जयपुर में बैठे हुए हेमंत कुमार का ऐसा लगता है, इसलिए ऐसा हो जाएगा, है ना? So all of this doesn't make sense here. कि ये जीवा जो है इस पर सुपर इम्पोज करके ये बन जाएगा, ये अविद्या इस पर सुपर इम्पोज करके ये बन जाएगा, बट व्हाट इज द शास्त्रीय बैकिंग फॉर दैट? इवन मायावादी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। कि जीव जब अविद्या जब ब्रह्म, एक्चुअली the honest point is, I'll be very honest, we don't know how exactly it happens. Even mayavadis don't know how exactly is maya projecting itself on brahman, and how exactly in Vaishnav school it is very clear. आप चाहे ये मानो कि वैकुंठ से पतन होता है या ये मानो वैकुंठ से पतन नहीं होता है, दोनों केस में इट्स वेरी क्लियर। वैकुंठ में है he desires to enjoy independent of Krishna, he comes to material world, then he has got his desires, samskaras, anarthas, and then जितने संस्कार whatever, या अगर वो नित्यबद्ध है, मान लो कि वो आप ये मानते हो कि वैकुंठ से पतन नहीं हो सकता, महाविष्णु के गर्भ में रहते हैं, एंड देन वहां से there is a pure choice and it comes into material world and then it makes decisions until unless ये समझ में आता है कि संसार मिथ्या है तो उसे छोड़ के वापस चलना है। It's very clear and makes some sense. This doesn't make sense. How exactly is this happening? We don't know. We don't know. How exactly is Vidya projecting itself on Brahman? How is different types of Vidya projecting on different Brahman? We don't know. We just don't know. No one knows. Anirvachaniya. Therefore, by nature it is anirvachaniya. Avidya is many. Why are many of it? Why is not many of it? अगर आप ये कह रहे हो कि अलग अलग तरह की अविद्या पहले से ही है, तो उसके बारे में तो कभी कोई बात की नहीं गई। Even Shankaracharya doesn't speak about different types of avidya. The Maya Mandir is like this. And how is that manifoldness in avidya exists? ब्रह्म और अविद्या के विकार से ये जगत में वैरायटी आती है, लेकिन अविद्या में वैरायटी का कारण क्या है? ये कैसे आप एक्सप्लेन करोगे आप? जगत में तो बताते हैं कि ठीक है, देखो सत्व तमस होता है, उनके डिफरेंट रेशियो से डिफरेंट एंटिटीज विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, बट अविद्या में ये मैनिफोल्डेड ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसका कारण क्या है? Am I making sense though? ठीक है, तो क्या मेन पॉइंट से पूरे किसी और को कोई पॉइंट इस पे? ठीक है, सो व्हाट केम फर्स्ट, अविद्या और जीवा? इस पे हम डिस्कस कर रहे थे कि बिकॉज क्या डिस्कस कर रहे थे हम इस पे? व्हेन अविद्या इज लोकेटेड एज मेनी एज जीवा इज नॉट इन मेनी, आई डोंट नो हम इस पे कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे हम इस पे? हम डिस्कस कर रहे मैनिफोल्ड थे मतलब बहुत सारी अविद्या होंगी तो कैसे वे जीव के ऊपर वो कर सकते, कैसे डिसाइड करेंगे कि जीवा मतलब कौन है, जीवा का कितना प्रभाव से जाना। तो मैनिफोल्ड वाला भी पॉइंट कट हो गया था, और इंडिविजुअल वाला भी। अगर विद्या अगर एक ही है तो एक जीव के लिबरेट होने सारे जीव लिबरेट हो जाएंगे, तो दोनों पॉइंट एक तरीके से आप yes. इसमें खंडन हो गया। हाँ, तो अगर एक जीव डिफरेंस होगा तो सबको जीव सारे जीवों को होना चाहिए, अगर अविद्या एक है, और अगर एक जीव बद्ध है तो सभी को होना चाहिए, क्योंकि अभी भी जीवा माया इज मोर, विद्या इज मोर इम्पोर्टेंट। और अगर मेनी है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अविद्या, तो फिर ये कैसे डिसाइड होगा किस तरह की अविद्या किसे डोमिनेट करे? हाउ विल इट बी डिसाइडेड? क्योंकि जीव का हिस्ट्री तो सेम है। दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट वेदांत ऋषिका आस्क्स। Now coming to the argument of Sudarshan, the fallacy of infinite universe, या जिसे हम अनवस्था कहते हैं, we will try to discuss that. तो सुदर्शन ये आर्गुमेंट देते हैं कि if the appearance of the world in Brahman is illusory called avidya, then avidya too must be caused by someone else. Basically यहाँ पर सुदर्शन क्या आर्गुमेंट देते हैं? देखो आर्गुमेंट कर देते हैं कि
अविद्या इज मिथ्या, मिथ्या, so that jagat is also, jagat is the effect of अविद्या एंड अविद्या इज द कॉज। अगर मैं पूछूं कि अविद्या किसका इफेक्ट है, व्हाट इज द कॉज ऑफ अविद्या, व्हाट इज द कॉज ऑफ अविद्या, का भी कोई सोर्स होना चाहिए, बिकॉज अविद्या इज नॉट एवर एग्जिस्टेड, इट समटाइम्स some there was a time when it came into existence, so what is the cause of avidya, and if avidya is mithya, the cause must also be mithya, and if this is mithya, it should also have a cause, बिकॉज मिथ्या एटर्नली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एक सपना एटर्नली एग्जिस्ट नहीं करता, सपना का एक शुरुआत होती है, कुछ देर तक वो चलता है, फिर सपना खत्म हो जाता है, ओनली द रियल थिंग इज एटर्नली प्रेजेंट, बट अविद्या बाय इट्स वेरी नेचर इज नॉट एटर्नली प्रेजेंट, जगत बाय इट्स वेरी नेचर इज नॉट एटर्नली प्रेजेंट, बिकॉज जगत इज मिथ्या, अविद्या इज मिथ्या, अविद्या शुड आल्सो हैव अ कॉज, इट शुड बी मिथ्या बिकॉज इफेक्ट इज मिथ्या। हमने याद है, हमने डिस्कस किया था सब कार्यवाद कि if the cause is Sat, the effect should also be Sat. If the cause is Asat, the effect should also be Asat. A Sat cause cannot have an Asat effect. We discussed this in Karyavad. और अगर ये कहता है, अगर हम कहते नहीं नहीं देखो, और अगर मान लो कोई कहता है कि नहीं नहीं देखिए ऐसा है, ये जो श्रृंखला है यहाँ रुक जाती है और अविद्या से पीछे कुछ नहीं है, अविद्या से पीछे कुछ नहीं, इसका मतलब अविद्या सत्य है, और अगर अविद्या सत्य है तो अविद्या जब ब्रह्म पर सुपर इम्पोज करती है तो सुपर इम्पोजिशन सत्य है, फिर अविद्या की वजह से जो मल्टीवेरियस, जो मल्टी वेरिएटेडनेस हम देखते हैं सोसाइटी में, दैट इज आल्सो सत्य, बिकॉज सत्य लीड्स टू सत्य, सत्य कॉज लीड्स टू सत्य इफेक्ट, इसका मतलब ब्रह्मन इज नॉट अनडिविजिबल, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फिनिट रिग्रेस, अनवस्था, that Sudarshan talks about. He says, if the appearance of the world in Brahman is illusorily caused by avidya, then avidya too must be caused by something different from itself. अविद्या का भी कुछ कारण होना चाहिए, and if one claims that avidya is real, then the non-duality of Brahman suffers. Thus, there must be a causal chain which involves the world, avidya, and seemingly a cause for avidya and so on. इस तरीके से ये जो श्रृंखला है, जगत, अविद्या, अविद्या के पीछे भी कुछ होना चाहिए, उसके पीछे कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये सब मिथ्या है, and मिथ्या इज नॉट एटर्नली एग्जिस्टेड, मिथ्या का कोई जब एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि मिथ्या इज एटर्नली एग्जिस्टेड। भाई ये जगत क्या है, जगत तो स्वप्न है, तो स्वप्न का कोई एग्जिस्टेंस थोड़ी है, इसी प्रकार से अविद्या को एग्जिस्टेंस नहीं है, पर ये जो स्वप्न है, ये स्वप्न का कारण है अविद्या, अविद्या क्योंकि नॉन एग्जिस्टेंट है, अविद्या का भी कुछ कारण होना चाहिए, उसका भी कुछ कारण होना चाहिए, उसका भी कुछ कारण होना चाहिए, कोई तो रियल कॉज होना चाहिए, जब जीव चेतन है तभी वो स्वप्न देख पा रहा है, अगर वो असत है, असत चीज स्वप्न नहीं देख सकती है, केवल सब चीज स्वप्न देख सकती है, ओनली ट्रूथ कैन लीड, only a true cause can be the cause of any type of mithya or any type of misunderstanding or illusion. जो जड़ वस्तु है वही, जिस ये जो रेगिस्तान में होता है ना वो मिराज, only a conscious being can see mirage, that we cannot see mirage because it is not conscious, only a conscious being can see, only a conscious being can lead to this type of illusion. So avidya should also have a cause. And if someone says, no, avidya is eternal, avidya has got no cause, then avidya must be satya. Because the mirage is not eternal, the observer is eternal. बारिश होगी, समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, वातावरण बदलेगा, क्लाइमेट बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, the mirage will disappear. But the observer remains. Observer is satya, the mirage is asatya. The observer is satya, the observation is asatya. ठीक है? So we have to understand this point that if we say कि नहीं अविद्या इज एटर्नल, इसका मतलब यू वांट टू से दैट द ऑब्जर्वेशन इज एटर्नल, द मिराज इज एटर्नल, द मिराज इज अ फैक्ट, इफ मिराज इज अ फैक्ट देन इट मस्ट बी ट्रू, आप वहां जाकर देखोगे तो वहां पानी होना चाहिए, तो अगर पानी नहीं है इट इज असत्य,
और अगर वो असत्य है तो वो चेंज होगा टाइम के साथ, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो वो सत्य है। इसी प्रकार से द अविद्या, if it is eternal, it must be satya. Am I making sense? If it is eternal, it must be satya. And if avidya is satya, we cannot say that avidya superimposition on Brahman is mithya, because true satya cannot lead to mithya. Brahma is satya, and if avidya is also satya, how is avidya's imposition on Brahman satya? And if avidya's imposition on Brahman is also satya, that leads to the fact that Jagat is satya, and hence, if Jagat is satya, then Brahman is divided, and then the undivided, unvariegatedness, unimmutable nature of Brahman is no more existent. Okay. तो जी आप इसका जो कॉज बोल रहे हो वो ऑब्जर्वर बोल रहे हो क्या मतलब? हाँ, नहीं मतलब मैं उस मिराज का एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑब्जर्वर इज सत्य वस्तु के, ओनली अ लिविंग ट्रू ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व द मिराज। ट्री कैन नॉट ऑब्जर्व, सैंड कैन नॉट ऑब्जर्व, सैंड ड्यूज कांट ऑब्जर्व, बिल्डिंग बनी होगी वहां, दैट बिल्डिंग ऑब्जर्व, सच बीइंग कैन ऑब्जर्व। ओनली सत कैन लीड टू दिस। तो मतलब अविद्या का कॉज एक 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 ट्रू कॉज होना चाहिए, एक सत कॉज होना चाहिए। अच्छा, तो वो सत कॉज क्या है? उस अविद्या के पीछे जाओ, अगर वो मिथ्या है तो उससे पीछे जाओ, वो मिथ्या है तो उससे पीछे जाओ, कहीं ना कहीं तो एक सत्य कॉज होना चाहिए। तो बोले नहीं नहीं, अविद्या का कोई कॉज नहीं, अविद्या इज एटर्नल। या तो अविद्या का कॉज बताओ, अविद्या का सोर्स क्या है, मुझे ये बताओ। अविद्या, सुदर्शन इज आस्किंग वेयर व्हाट इज द सोर्स ऑफ अविद्या? अविद्या का सोर्स, जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि वो जो मिराज का मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये इल्यूजन है, उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है नहीं कॉन्शियसनेस। आप बोले नहीं नहीं, उसका उसका कोई सोर्स नहीं है। अगर उसका सोर्स नहीं है तो वो सच में होना चाहिए। इट मस्ट बी देयर, द मिराज मस्ट बी देयर। एंड इफ मिराज इज नॉट देयर बट द ऑब्जर्वेशन इज देयर, देन देयर मस्ट बी समवन टू ऑब्जर्व। नो, इसको दोबारा समझे या ठीक है। तो गए क्या साथ, कोई तो बोल नहीं रहा कुछ। तो अगर सत्कार्यवाद के अनुसार देखें तो जो मिथ्या है, जो कॉज है, वो भी मिथ्या होना चाहिए, ये कहना चाहते हो ना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो ठीक है, सत्कार्यवाद का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल, दैट इफ ऑब्जर्वर इज कॉन्शियस, ठीक है, ऑब्जर्वर सत्य है, एंड ही इज ऑब्जर्विंग समथिंग, ठीक है, मान लो मिराज हो सकता, तो दो चीजें हो सकती है, या तो मिराज एग्जिस्ट कर रहा है या मिराज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दो चीजें हो सकती है। अगर मिराज एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्जर्वर कोई भी हो वो मिराज को देखेगा, ठीक है। और अगर नहीं, तो एक कॉन्शियस बीइंग होना चाहिए उस मिराज को देखने के लिए। अगर वो मान लो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो इल्यूजन है, तो उस इल्यूजन को का सोर्स या कॉज एक कॉन्शियस बीइंग होना चाहिए। एम आई मेकिंग सेंस? उस मिराज का कॉज एक कॉन्शियस बीइंग, या तो वो हो, या उसका इल्यूजन सिर्फ एक कॉन्शियस बीइंग ही उस इल्यूजन को फेस कर सकता है। एक अनकॉन्शियस चीज उस इल्यूजन को फेस नहीं कर सकती। तो या तो उसका एग्जिस्टेंस है, या एक कॉन्शियस व्यक्ति उसे ऑब्जर्व कर रहा है ड्यू टू हिज इल्यूजन। सपोज आप रेगिस्तान में जा रहे हैं, आप जयपुर में हो, वहां से जैसलमेर ज्यादा दूर नहीं है, जैसलमेर जा रहे हो और आप देख रहे हो मिराज। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो मिराज सच में एग्जिस्ट कर रहा है, या वो मिराज आपकी मिथ्या है। इसमें कोई डाउट नहीं है, हाँ हाँ। ठीक है। अब मान लो कि मैं बोलूं कि वो मिराज सच में एग्जिस्ट कर, ठीक है, अगर वो मिराज सच में एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई भी ऑब्जर्व करे उसे वो मिराज दिखेगा। हाँ तो इट हाँ। इज ट्रू, द मिराज इज ट्रू।
any observer will observe the mirage, he will see a mirage is true. बट सेकंड मैं बोलूं प्रभु वहां मिराज नहीं है, बट आप कह रहे हो मैं मिराज तो देख रहा हूं, बट वो वहां नहीं है, तो क्या आप कहेंगे मैं देख रहा हूं? अगर आप देख रहे हो इसका मतलब यू आर कॉन्शियस, इसीलिए आप उस इल्यूजन को एक्सपीरियंस कर पा रहे। An unconscious being cannot experience the illusion. If it is true, anyone will observe it. If it is not true, then you need to be conscious to be experiencing that illusion. ये दो पॉइंट क्लियर है पहले? बताइए, यस ये पॉइंट क्लियर है? जी प्रभु जी। ठीक है। इसी तरीके से अविद्या की बात, या तो अविद्या सत्य है, क्योंकि अविद्या को ऑब्जर्व, हम अविद्या को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं डेली लाइफ में? कर रहे हैं। तो या तो अविद्या सत्य है, या फिर मैं कॉन्शियस हूं इसलिए अविद्या को ऑब्जर्व कर रहा हूं, अविद्या मिथ्या है। दो चीजें हो सकती है। मैं अगर अविद्या सत्य है, अविद्या का सुपर इम्पोजिशन ऑन ब्रह्मन शुड आल्सो बी सत्य। Am I making sense? तो सत्य का सत्य पे इंपोजिशन करके सत्य कैसे बन सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने सत्य आटे में सत्य पानी को गूथा और जो रोटी बनी वो इमेजिनरी बनी? ऐसा हो सकता है? नहीं। आटा सत्य है, पानी सत्य है, तो रोटी भी सत्य है। I get my point. If Brahman is Satya, Avidya is Satya, then the Jagat should also be Satya. And it means if the Brahman is divided, then in case the Brahman का unified nature no more exists. This is the case when Avidya is true. आप कहते नहीं कि अविद्या तो एग्जिस्ट नहीं करती है, ये तो जीव ऑब्जर्व कर रहा है, अविद्या कुछ सच एग्जिस्ट नहीं करती। अविद्या अगर मिथ्या है, अविद्या का कुछ सोर्स होना चाहिए, अविद्या का कुछ सोर्स होना चाहिए, और उसका कुछ सोर्स होना चाहिए, और उसका कुछ सोर्स होना चाहिए, और उसका कुछ सोर्स होना चाहिए। आप बोलोगे देखो अविद्या के अलावा क्या एग्जिस्ट करता है? अविद्या के अलावा ब्रह्म एग्जिस्ट करता है, बट ब्रह्म इज नॉट द कॉज ऑफ अविद्या। ब्रह्मन इज नॉट द कॉज ऑफ, दिस इज वेरी क्लियर, मायावादी इज वेरी क्लियर अबाउट दिस। ब्रह्मन डजंट क्रिएट अविद्या, वो क्रिएट्स अविद्या। either someone created avidya or avidya is eternally present. If someone created avidya, who is that someone who created it? That is the question. If avidya was created, who created avidya? यहाँ पर सुदर्शन is saying there is a question of infinite regress. Who created avidya? The Brahman who created. So if avidya was not created, avidya is eternally present, then how is avidya superimposing on Brahman creates a mithya jagat? Am I making sense? Please let me know if it doesn't. प्रभु जी। Am I making sense, Prabhuji? जी प्रभु। ठीक है। Moving on to the next argument. ठीक है, तो आई थिंक ये मैंने देख लिया, ये आर्गुमेंट इतना ही आर्गुमेंट हमने कवर कर लिया है। इसमें बस एक और पॉइंट है कि अविद्या बिगिनिंगलेस है या नहीं, इसमें भी गेट इनटू इशू। दूसरा है अगर क्या जीव बिगिनिंगलेस है या नहीं। आप बोलोगे नहीं नहीं, जीव तो देखिए बिगिनिंगलेस नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान गीता में, न त्वेवाहम जातुनासम न त्वम निमे जनाधिपा। कोई ऐसा समय नहीं था, तुम नहीं थे, मैं नहीं थे, मतलब जीव बिगिनिंगलेस है। अरे भैया जब जीव बिगिनिंगलेस है, अविद्या ने जीव को कब कवर किया ये बताइए जरा। दो क्वेश्चन। ब्रह्मन एटर्नल है, इसमें किसी का कोई संशय नहीं, देयर इज नो डाउट। जगत टेम्पररी है, जगत का शुरुआत हुआ है, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है। वैष्णव और अद्वैत एक साथ हिंदी चीनी भाई भाई। ब्रह्मन इज एटर्नल, जगत इज टेम्पररी।
जीव और ब्रह्म, सॉरी, जीव और अविद्या। अविद्या का हमने डिस्कस किया कि सत्य है तो दिक्कत, सत्य है तो दिक्कत। जीव का क्या सीन है? जीव के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं सुदर्शन कि जीव अगर बिगिनिंगलेस है तो वो क्या समय था जब जीव पर अविद्या का आवरण हुआ? क्या समय था? और जीव तो इफेक्ट है अविद्या का। सुदर्शन इज आस्किंग, जीवा इज द इफेक्ट ऑफ अविद्या, अविद्या इज द कॉज ऑफ जीव। So if Jiva is beginningless, what was the time when Jiva was affected by avidya? Because Jiva comes into existence when Brahman is superimposed by avidya. But Jiva is beginningless. बोल नहीं नहीं नहीं, जीवा तो बिगिनिंगलेस नहीं है। अरे भाई, जब जीव बिगिनिंगलेस नहीं है तो वाया शास्त्र से ही जीवा इज बिगिनिंगलेस। The शास्त्र is saying Jiva is eternal when Jiva came into existence. So if Jiva is eternal, when did avidya overcome Jiva? And Jiva is not eternal. Why are Shastra saying Jiva is eternal? Mayavadis may say, I have not read their argument what they say on this, but they may say कि नहीं, क्योंकि ये बहुत पहले हुआ था, इसलिए नफरत में से कि अगर भाई मायावादी जो है वो अब भेद शास्त्र और अभेद शास्त्र करके शास्त्र के पूरे सेक्शन को रिजेक्ट कर देते हैं, फिर उपनिषदों को रिजेक्ट कर देते हैं, तो देयर इज नो डाउट दे में से कि नहीं नहीं, वो तो इतना पहले हुआ था कि शास्त्र कह रहे हैं इट इज एटर्नल, बट इट इज नॉट एटर्नल, इट हैड अ बिगिनिंग। क्वाइट पॉसिबल दे कैन से। So this is second question about the existence of Jiva. So if you go by Mayavadi school, you may question Avidya, you may question Jiva. You'll be stuck. You will be in logical place. What is the Vaishnava understanding? We all know. Krishna is eternal. Krishna's Shakti is also eternal. But Krishna manifests as per time, place, and circumstance. Krishna's Bahiranga Shakti is eternal. But when Mahavishnu inhales, the external Shakti, the Bahiranga Shakti, unmanifests. The Mahamaya unmanifests. और फिर दोबारा जब भगवान सृजन करते हैं तो फिर दोबारा से जो विजन है महाविष्णु के दृष्टिपात से तदैक्षत, this jagat becomes activated. So this is how Maya comes into existence in Vaishnava school. And Jiva is eternally exists. But Jiva is overpowered by avidya depending on its free will. This is the understanding of Vaishnavas. Okay, I guess we have one last topic left for the day. Nirvachan. Theory of inexplicability. Theory of I don't know if I 90% is correct spelling. Explicability. Basically अनिर्वचन। द्वितीय अनावस्था और यह अनिर्वचन। तो श्री कहते हैं कि देखिए, आप कहते हैं कि अविद्या का स्वभाव क्या है? अविद्या का स्वभाव अनिर्वचनीय। अरे भैया, अगर अविद्या का स्वभाव अनिर्वचनीय है तो अविद्या के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं कहा जा सकता। अरे भैया, अगर अविद्या के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता तो फिर भी हम अविद्या के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। तो अरे भैया, आप क्या कह सकते हो अविद्या के बारे में? हम बहुत कुछ कह सकते हैं अविद्या के बारे में। जैसे अविद्या के बारे में कहा जा सकता है कि अविद्या जो है वो ज्ञान को नष्ट कर देती है, ज्ञान को ढक लेती है। बताइए साहब, कहा जा सकता है? साहब बिल्कुल कहा जा सकता है कि अविद्या जो है वो ज्ञान को ढक लेती है, यह अविद्या का लक्षण है। अच्छा साहब, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि अविद्या जो है वो मुक्त जीवों में एग्जिस्ट नहीं करती, जो ब्रह्मलीन है उनमें अविद्या नहीं है। बताइए साहब, कहा जा सकता है? हाँ बिल्कुल भैया, कहा जा सकता है। ये जो मुक्त जीव है वो अविद्या से अनटच्ड है, अविद्या से पूरी तरह मुक्त है। अच्छा साहब, और क्या कहा जा सकता है साहब? कहा जा सकता है कि अविद्या जो है बाय नेचर इट इज वेरी इम्प्योर, अशुद्ध है, अज्ञान लाती है। बताइए साहब, कहा जा सकता है? हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अविद्या का तो स्वभाव है, इट इज इम्प्योर। अच्छा जी, और क्या कहा जा सकता है साहब? और कहा जा सकता है कि अविद्या जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट है, कॉन्शियसनेस को डिस्टर्ब करती है, मेलाइन करती है, कंटेमिनेट करती है। बताइए, कहा जा सकता है साहब? साहब बिल्कुल कहा जा सकता है साहब, अविद्या ये सब कार्य करती है।
लेकिन साहब आप तो कह रहे थे कि अविद्या इज अनिर्वचनीय, बट अविद्या के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, उसके नेचर के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में, दोनों चीजों के बारे में कहा जा सकता है, सबके बारे में कहा जा सकता है। हाँ साहब, कहा जा सकता है। अरे साहब, जब कहा जा सकता है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अविद्या अनिर्वचनीय है? अविद्या अनिर्वचनीय नहीं है, अविद्या कैन बी एक्सप्लेन। कह रहे हाँ हाँ हाँ, कुछ चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। अरे भैया, अगर कुछ चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं तो बाकी चीजें क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकते? ये तो नहीं पता। अरे भैया, आपको नहीं पता कि अविद्या का स्वभाव क्या है? अगर कुछ चीजें बताई जा सकती है तो बाकी चीजें क्यों नहीं बताई जा सकती? अविद्या के ओरिजिन के बारे में क्यों नहीं बताया जा सकता भैया? हाँ भैया, बात तो सही है, लेकिन श्रीपाद शंकर बोले कि अविद्या निर्वचनीय है, तो हम सब मानते हैं अविद्या निर्वचनीय। अरे भैया, अविद्या तो अनिर्वचनीय नहीं है, वो तो वचनीय है। ठीक है भैया, इसका तो हमारे पास कोई जवाब है नहीं वैसे। तो ये एक और लॉजिकल फैलेसी है मायावादी के साथ। हम्म, एक सेकेंड, एक सेकेंड। I just want to read 2-3 lines and then we will end here. Okay, I'll read 2-3 lines on this and then we can end here. तो कहते हैं सुदर्शन, Advaita claims that Brahman is one and non-dual, attributeless and undifferentiated consciousness. बिल्कुल ठीक है. And that avidya is the cause of appearance of the universe of multiplicity. ब्रह्म जो है वो अद्वैत तत्व है और अविद्या के कारण ये जो हम वैरायटी देख रहे हैं जड़ जगत में वो दिखती है. अविद्या इज इल्यूजरी, नॉट रियल, ये भी अद्वैत वेदांत कहता है. इट्स कॉज टू, मतलब अविद्या का जो कॉज है, इट मस्ट ऑल्सो बी इल्यूजरी, नहीं तो फिर सत्कार्यवाद की फिलॉसफी फेल हो जाएगी, डुअलिटी आ जाएगा जगत में. अगर जगत अविद्या मिथ्या है तो जगत को भी मिथ्या होना चाहिए. अदरवाइज अगर अविद्या मिथ्या है और जगत सत्य है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सत्य पर मिथ्या का आवरण से सत्य प्रकट हो जाए? मतलब इट विल लीड टू डुअलिटी, इट विल लीड टू लॉजिकल फैलेसीज. And the same hold true for the cause of avidya and so on. Thus rises the fallacy of infinite regress, जिसके बारे में हमने बात कर ली. Sudarshan tries to force the Advaitian into saying that avidya arises due to jiva and jiva arises because of avidya. This would have effect of going counter to Shruti texts which call the jiva eternal. If the jiva comes into existence because of avidya, it is not eternal. As well, if the jiva is not eternal, it will mean that the fruits of good and bad actions which were not deserved will accrue to the jiva, as well as fruits of good and bad actions which were deserved will not accrue. A final difficulty involves the fact that if the jiva is not eternal, it will not persist until it gains liberation. तो क्या क्या बात यहाँ पर सुदर्शन जी ने कही? श्रीपाद सुदर्शन ने कहा कि अद्वैत ये कहता है कि ब्रह्म अद्वय है, अविद्या जो है वो मिथ्या है, और अविद्या मिथ्या है तो ये जगत, क्योंकि अविद्या का इफेक्ट है तो जगत भी मिथ्या है. ठीक है, इस पे तो एवरीवन एग्रीज. पर सुदर्शन कह रहे हैं कि मायावादी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि अविद्या का लोकस क्या है. अविद्या का लोकस अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कैसे अविद्या का लोकस, वो हमने डिस्कस किया, क्या क्या लॉजिकल फैलेसीज है. और ब्राह्मण का और अगर अविद्या का लोकस जीवा है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की, है ना. और हमने ये भी चर्चा करने का प्रयास किया, आप ये समझिए, हमने चर्चा करने का प्रयास किया कि जीवा मस्ट बी ट्रू, जीव मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीव मिथ्या होगा तो हो सकता है वो मुक्ति तक वो जीव एग्जिस्ट ही ना करे. फॉर द जीवा टू एग्जिस्ट अंटिल लिबरेशन, इट इज इंपॉर्टेंट दैट sorry, so for the jiva to exist until liberation, it is important that the jiva um,
it it is real, it is existing. Otherwise ऐसा होगा कि liberation से पहले जीवा loses its existence. Uh, it might be possible. So Sudarshan further Shripa Sudarshan he brings in a lot of other arguments as well, like for example reciprocal dependence, but we'll not go into that today because it's already 2 hours, pretty long discussion and very complex. I understand that this subject matter is very very complex, and even it is taking me a lot of multiple reading sessions to get the gist of it, what Shripad Ramanujacharya is trying to say. But yeah, it is blissful in its own sense, understanding how Shripad Vedanta Deshika, Shripad Ramanujacharya, Shripad Sudarshan, they are taking up arms against the the poison of Mayavad. In that sense, it is blissful as well. And just to give a disclaimer, we have not started with any of the 7 arguments. Although जो हम 7 arguments discuss करेंगे, अगर हम करेंगे, तो उसपे उसका काफी सारा ग्राउंड वर्क तैयार हो गया क्योंकि सारे जितने भी आर्गुमेंट्स है वो अविद्या उसमें एक सेंट्रल फिगर है और आज हमने अविद्या के बारे में डिस्कस करने का प्रयास किया अविद्या का लोकस क्या अविद्या का नेचर क्या अविद्या का एग्जिस्टेंस क्या है and this will probably make the further discussion very easy, but I don't know if we will discuss this entire book because this book is very extensive and ideally we should be giving this much time into reading Srila Prabhupada books instead of reading uh, books by some random authors or how Mayavad was defeated. And all this discussion is being done on the foreground that Srila Prabhupada books and Srila Prabhupada's purport are our main focus. And if we are not able to read that, then please don't come to these discussions. It's a humble request. If you are unable to read Prabhupada books due to whatever reasons, better give this time into reading Prabhupada books. And otherwise, it is an offense to Srila Prabhupada. हम Prabhupada books पढ़े बिना बहुत ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो बहुत नीचे गिरेंगे धड़ाम से. So the prerequisite, the only qualification kya matlab, what are we doing here? But one request is to give exclusive and extensive focus on reading Prabhupada books. Otherwise, all this discussion is just mandanam lokaranjanam. It is just another type of intellectual sense gratification, which will not take us anywhere. Thank you very much. That's all for today. Maybe next session we'll start with the actual 7 arguments of the Vedanta. And let's see how far we go in that. Okay, yeah, thank you very much. Any question, comments? गुरुजी जैसे ये अनिर्वचनीय बताया आधे तरीके से कि मतलब कुछ चीजें वचनीय है और कुछ चीजें अनिर्वचनीय है, वैसे जैसे हम लोगों की फिलॉसफी में अचिंत्य भी कुछ चीजें हैं मतलब और कुछ चीजें अचिंत्य हैं जैसे जीव और ब्रह्म मतलब भगवान में मतलब कुछ क्वालिटीज जैसे 56 क्वालिटीज सेम रहती हैं 50 क्वालिटीज और इसके बाद उसके बाकी चीजें कैसे सेम है वो चीज चिंत्य हो जाती है. एक सेकंड पता नहीं मे बी शायद वॉइस आप बोलिए आप मैं अभी आपका आवाज नहीं है. हाँ मतलब कि जैसे इसमें अविद्या कुछ चीजें अनिर्वचनीय हैं और कुछ चीजें वचनीय हैं वो लोग जैसे बोलते हैं. जैसे हम लोग फिलॉसफी में कुछ चीजें अचिंत्य हैं कुछ चीजें चिंत्य हैं तो उसको कुछ नहीं nothing can be said about it. But जैसा हमने पढ़ा श्वास दर्शन से lot can be said about it. You are saying nothing can be said about it. So it's not that nothing can be said about it. अच्छा. And about nirvachaniya and achintya say means it is beyond our intelligence to digest it. But it's not that it cannot be spoken or it cannot be realized. You cannot realize the nature of avidya, but you can realize the Swabhava of Krishna. So Nirvachaniya is a limitation on the nature of Brahman. It cannot be. But Achintya is the limitation on our own ability. We cannot do it. So Achintya is a limitation on ourselves. Nirvachaniya is the limitation on Brahman. There is a difference. जी. हाँ जी. Okay. We are done for the day then.
Okay, then thank you very much, Rosie. Thank you for your patience through this. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यश्च जय Krishna Prabhupada. Subhadramam Vacharya. Thank you very much. Hare Krishna.